Hi Hello, Manish hello, ji. hello, 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 hello. A very warm welcome to the next episode of Coach I Need Help. This is the second episode. I hope you've seen the first episode already. And in today's episode, we are going to talk about a very important subject where we discuss, can anybody become a coach? What qualities do you need to become a coach? Can anybody become a coach? Should everybody become a coach? What are the qualities and the issues, or what are the qualities and qualifications you need to become a good coach? I'm Manish Ahuja, and the other person on the screen that you can see right now smiling very nicely is Pankaj Agarwal. The two of us have come together to start this new podcast called Coach I Need Help. This is a podcast by coaches for coaches talking about the coaching industry at large. We are based out of India, so we will talk about coaching industry in India. इस पॉडकास्ट को हम हिंदी और इंग्लिश में करते हैं क्योंकि जैसे हमारा मन करता है हम वैसे बात करते हैं. So Yes. let's get started. Hello, Pankaj. How are you doing today? Hi Manish ji, I'm doing good. ये podcast हम लोग मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं around 7 a.m. So I'm feeling too much energetic. अच्छा है ना करते हैं. So Yes. yeah, we are supposed to. This episode goes live on the Friday evening, and we're on 3rd of March, and we're recording this on the 1st of March morning. And Yes. yes, that let's get started. So Pankaj, Yes. let's start with the first question on our mind. Can anybody become a coach? What are your thoughts on this? Thought simple है like क्यों नहीं why can't anybody become a coach? So जिसको भी अगर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, एक लेवल ऊपर है बेसिकली. अगर मुझे बुक रीडिंग आता है, बहुत लोगों को बुक पढ़ना भी नहीं आता है, मतलब पढ़ना नहीं आता इन द सेंस कि कोई 15 मिनट 20 मिनट तक नहीं पढ़ पाते लगातार, जो कि मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ. सो अगर किसी को वो स्किल आता है तो लोगों को सिखा सकते हैं. कोई हमसे ज्यादा फिट है तो वो मेरे को सिखा सकता है. किसी को सिंगिंग आता है तो वो दूसरों को सिखा सकता है. तो जरूरी नहीं है, मेरा मानना है कि जरूरी नहीं है आप अपने फील्ड में पूरा एकदम महारथी हो तभी जाके आप कोच बन सकते हो. आप अगर उसको हम लोग डिवाइड कर ले, लेवल 1 to 10 अगर रेटिंग दे रहे, कि लेवल 1 है कि वो उस फील्ड में बिगनर है, और लेवल 10 हो गया कि जब आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो. तो आप अगर 2 में भी आ रहे हो, 3 में भी आ रहे हो, तो आप 1 वाले को कोच कर सकते हो ना, जो एकदम स्टार्टिंग ही कर रहा है. चाहे आप Absolutely. कहीं से भी नॉलेज लेकर आ रहे हो, खुद का एक्सपीरियंस हो नहीं हो जैसे भी, बट एटलीस्ट उससे तो ज्यादा पता ही है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई 1 घंटे का पॉडकास्ट हमारा सुनकर आ रहा है, एपिसोड 1 मान लेते कोई सुनकर आया हमारा, तो उसको बाकी लोग से थोड़ा सा तो एक एक स्टेप आगे नॉलेज है ना. तो उस Correct. टॉपिक के बारे में वो कोच कर सकता है. तो ये Correct. मेरा Correct. मानना है. आप क्या कहते हो इस पे? हाँ, you're absolutely right. So मेरे हिसाब से भी as far as you are solving a particular problem as a coach, अगर आप एक coach हैं या if you're getting into the market, you're going to provide a solution, right? हम्म. As far as you are confident about providing the solution that you're promising, and the second thing being, as far as you have some sort of a proof that you can solve this problem, you've either solved this problem in your own life or you are going to solve, you've solved it in somebody else's life and they are ready to give you a testimonial, and you have the confidence to solve that problem with a systematic step by step process for everybody, anybody can become a coach. The question is, can anybody become a coach? Yes. Should everybody become a coach is something that we are going to still explore in this episode. हम्म. And at the same time, you anybody can become a coach as far as they are delivering on the promise that they are making to the customer and they have the experience to solve that एब्सोल्युटली. problem for sure. Yeah. राइट. सो आप बता रहे थे शुड एनी बडी बिकम अ कोच, कि वी विल डिस्कस ऑन दैट. तो उससे आपका क्या कहने का मतलब है कि क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि मुझे कोच बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? So should everybody become a coach? I don't think so. क्यों? Because see, कोचिंग के लिए एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी की जरूरत होती है ऐसा मुझे लगता है. यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस. यू एंड कोचिंग है ना अपने आप में एक बिजनेस. इन द रीसेंट टाइम्स खास करके जब मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया, हम्म. बैकएंड सेटअप करना होता है, फाइनेंसेस सेटअप करने होते हैं, रिस्क लेना होता है, एड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, लीड मैग्नेट्स बनाने होते हैं, यस. बहुत सारी चीजें होती है. सो इज दैट एवरीबडीज कप ऑफ टी? मे बी नॉट. हम्म. If you're already in a really good 9 to 5 career, you don't really need to stop that. If you love your career, you don't really need to stop that to become a coach. Can you do that? Yes, obviously you can. Keep watching these episodes. You'll understand all the things that you need to understand about the coaching industry, and you can decide for yourself. Can anybody become a coach? Yes. Should everybody become a coach? Not really. If I'm a business owner and if I already have a really profitable business, why will I stop that business to become a coach?
तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, लाइक अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ तो बट वो अपना ब्रांड बनाने के लिए, लोगों को एडुकेट करने के लिए वो लोग तो थोड़ा बहुत एडुकेट कर ही सकते हैं। मतलब देयर एम फॉर कोचिंग वोंट बी बिजनेस, कि उनको कोचिंग से पैसे नहीं कमाना है, वो अपने बिजनेस से पैसे कमा रहे, बस लोगों को एडुकेट करे। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट शार्क टैंक, सो वो जो अभी बहुत फेमस चल रहा है एपिसोड इंडिया में, सो उनको वहां पे आके पैसा थोड़ी कमाना है, बट दे आर स्टिल डूइंग सम काइंड ऑफ कोचिंग फॉर अस, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, but then they are not charging you as a coaching client, right? You're not paying Piyush Bansal or Anupam हम्म। Mittal or Aman Gupta ओके, सो अभी जो हम लोग a बात fee. कर रहे हैं, आप बोल रहे कि कैन मतलब जो Coaching भी as a एज अ business. बिजनेस, कि कोचिंग Correct. को एज अ बिजनेस लेना चाहिए कि नहीं। हाँ, एंड ऐसे फ्री वैसे में भी तो जैसे कोचिंग हम, कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं हाँ, और जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, whatever they are doing is, first of all, they are not necessarily teaching you. They are having a conversation with the entrepreneur who's coming to pitch them, and you are learning from them. है। यस आई एम। It, it's passive learning. यस। Secondly, let's say even if you had direct access to one of the sharks, and if हम्म। they were talking to you, they are not necessarily coaching you, they're mentoring you. यस यस यस। A coach will literally hold your hand metaphorically, or at हम्म। least tell you you are at step A, and हम्म। they have the exact recipe to take you from step A to step D. So, what is the B, C, D, E, F? They know the step by step process. ट्रू। And the coaches and the sharks on Shark Tank are not necessarily telling you where do you stand and where are you supposed to reach and what is the step by step process for the same, right? They're just यस यस। sharing the knowledge at large. यस यस। तो वो मेंटरशिप ही हो गया, अगर उनके साथ वो पर्सनली कनेक्टेड है किसी के साथ तो मेंटरशिप है। मेरे लिए बस मैं इधर पीसेस ऑफ नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, कि कभी वो डिफाइन कर रहे, कभी आइडिया आ रहा है उस पर वो अपना फीडबैक दे रहे। मैं बस Exactly. आदत है लर्निंग का, तो उधर से भी लर्निंग खींच लेता हूँ। ठीक है। Exactly. तो मनीष जी ये बताइए कि जो अभी बता रहे थे कि कोई भी बन सकता है, बट बनना है कि नहीं बनना है, इसी को हम लोग एक स्टेप और आगे ले जाते हैं कि किनको बनना चाहिए और किनको नहीं बनना चाहिए। क्या क्या डिफाइन करेगा वो कि किनको बनना है, किनको नहीं बनना है? Who should become a coach? मेरे हिसाब से एक बहुत important चीज है which will help you decide if you should become a coach, हम्म। or if you don't have this quality, I don't think you should become a coach, is if you have a very strong will to make a tangible difference in your participant's life. हम्म। ये कोचिंग की जो इंडस्ट्री है, ये बिजनेस की इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें सर्विस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैं एक सिंपल चीज समझाता हूँ। अगर आप कोई सपोज प्रोडक्ट बेचते हैं, लेट्स से आप डिजिटल सॉरी ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस हम्म। बनाते हैं, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हम्म। आपका जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर का आपसे, वो ये है कि आप एक जो कीबोर्ड बना रहे हैं या एक माउस बना रहे हैं, हम्म। ये सिर्फ जैसा आपने प्रॉमिस किया वैसा काम करना चाहिए, डिलीवर हो जाना चाहिए, और आपके लाइफ में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। बट इन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कोचिंग, द प्रोडक्ट दैट यू आर डिलीवरिंग इज एब्सोल्युटली इनटैंजिबल। उसको यस। कोई हाथ लगा के फील नहीं कर सकता। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आपके लाइफ में आपके पार्टिसिपेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही आप कोचिंग में आइए। ठीक है। बिकॉज सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोचिंग में मत आइए, फिर इट एंड्स अप डाइल्यूटिंग द एंटायर इंडस्ट्री, एंड सूनर और लेटर यू विल ओनली गेट बर्नट आउट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो सकता है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है, वो हाँ जी। 5-7 साल से एक्सपीरियंस है, वो कोडिंग कर रहा है, या फिर वो पाइथन में बहुत अच्छा हो चुका है, एक लैंग्वेज हो गया कोडिंग लैंग्वेज। सो वो अपने लिए कैसे डिसाइड करेगा, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या एग्जैक्टली exactly वो क्या करेगा लोगों के लाइफ में? वो अब वो उसके ऊपर है। जस्ट बिकॉज ही इज एन एक्सीलेंट पाइथन कोडर डज नॉट मीन दैट ही इज गोइंग टू बिकम अ पाइथन कोच। ही कैन ऑल्सो बी अ फिटनेस कोच। अगर वो पाइथन के साथ में बहुत ज्यादा फिट भी है, और हम्म। अगर उनका मन करता है कि उनको कोचिंग करनी है फिटनेस पे, तो वो कौन सा गारंटी दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को? कैन ही प्रॉमिस वेट लॉस? कैन ही प्रॉमिस और शी प्रॉमिस absolute physical हम्म। fitness? Can they promise higher immunity? Can they हम्म। promise some sort of a resilience, physical resilience या strength training? तो आप क्या प्रॉमिस कर सकते हो? उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस क्या है, क्या टूल्स है, क्या टेक्निक्स है, वो अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके बाद में अगर आप कंटेंट बना सकते हो, उसके बाद अगर आप
उसके आसपास एक पूरा ब्रांड बना सकते हो, खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाकर एक आइडेंटिटी बना सकते हो, तो फिर आप कोचिंग कर सकते हो। करेक्ट। सो आप बोल रहे हो कि अपने एक्सपीरियंस के अलावा भी, जो अभी ऑलरेडी 6-7 साल से अगर कोई कुछ फील्ड पे काम कर रहा है, उसके अलावा भी अगर उसके पास कुछ नॉलेज एक्सपर्टीज था, जैसे मान लेते वो वही आईटी एम्प्लॉय अगर फिटनेस पे भी ध्यान दे रहा था, तो उसको बनना क्या चाहिए? उसको फिटनेस एम्प्लॉय बनना चाहिए, फिटनेस कोच बनना चाहिए, या फिर जो ऑलरेडी 7-8 साल से काम कर रहा है जिस फील्ड पे एक्सपीरियंस है? एक्चुअल में एक्सपीरियंस तो पाइथन पे था ना उनका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग बहुत बार बात करते हैं, इसे बेसिकली हम नीश कहते हैं। व्हाट प्रॉब्लम आर यू सपोज टू सॉल्व फॉर द मार्केट। हम्म। सो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, बिकम अ कोच फॉर अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन योर लाइफ दैट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट। ओके। क्योंकि पैसा कमाना कोचिंग में आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ईजी है। आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम एक बैकएंड सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक बार आपने उसको सेट कर लिया, आपको सिर्फ कंटिन्यूअसली सिर्फ एक ही चीज को रिपीट करना है। हम्म। क्रिएट कंटेंट, डू वेबिनार, सेल, एंड कीप बिल्डिंग अ कम्युनिटी। तो आप कौन सी कम्युनिटी है जो 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए बना सकते हैं? आपको अपना हम्म। पर्सनल ब्रांड कौन से पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन वाले डायरेक्शन में बनाना है, ये आपको सोचना है। ठीक है। सो मनीष, बैकएंड आप कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो ये बैकएंड क्या होता है? मतलब क्या बैकएंड क्या है? लोगों को ओके, समझाइएगा जरा। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आपके पास वापस फेंकूंगा, क्योंकि ये आपका ही सबसे बड़ा हाँ। स्ट्रेंथ है। Just for a small introduction, Pankaj actually is somebody who has come up with the concept of laser webinars, and everything to do with laser webinars is directly connected to the back end of the coaching business. So instead of ठीक है। Pankaj asking me this, I will ask this question back to Pankaj. So Pankaj, आप हमें बताइए बैकएंड क्या होता है ठीक कोचिंग है। बिजनेस का। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे डिस्कशन करना है, हम लोग ऑफ फ्यूचर में कोर्स। डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा हम लोग ऑडियंस को एक ओवरव्यू दे देते कि बैकएंड मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं बार बार। तो बैकएंड एब्सोल्युटली। ये हो गया कि जैसे एक हो गया फ्रंट एंड, एक हो गया बैकएंड। फ्रंट एंड हो गया कि आप सामने लोगों से बात कर रहे हो, वेबिनार कर रहे हो, जूम पर आ रहे हो, लोगों को अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, या यूट्यूब से कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, ईमेल भेज रहे हो। तो लोगों के पास जो कंटेंट जा रहा है वो काइंड ऑफ फ्रंट एंड कंटेंट हो गया, बट करेक्ट। जो सामने लोगों को दिख रहा है। बट इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा चीज होता है, उसको हम लोग बैकएंड बोल रहे हैं। जैसे कि ईमेल भेजना है, तो ईमेल ऐसा नहीं कि कॉपी पे लिखे और ईमेल अपने आप उनका इनबॉक्स पे चला गया। ईमेल लिखते हैं हम लोग, एक टूल आता है, वो टूल खरीदना होता है, टूल को सेटअप करना होता है। जैसे ही कोई आपका वेबिनार या कोई कंटेंट के लिए रजिस्टर कर रहा हो, उनको ऑटोमेटिकली एक ईमेल जाता है ऑटोमेशन पे। सो ये सारा चीज अपने आप हो रहा है। जो भी अपने आप होता है उसको हम लोग बैकएंड बोल रहे हैं। तो करेक्ट। ईमेल भेजना बस एक पार्ट हो गया, उसके अलावा हो गया कि ऐड चलाना, फिर उसके अलावा हो गया कि उन लोग को व्हाट्सएप मैसेज भेज के ऑटो वहां पे अटेंडेंस पे लाना। कि जैसे मान लेते आप वेबिनार कर रहे हो, लेजर वेबिनार का एग्जांपल दे ही देते हैं कि वो 5 स्टेप में काम करता है। पहला तो हो गया आपका लीड जनरेट करना है। लीड कैसे जनरेट करोगे? कोई भी बिजनेस को लीड ही चाहिए होता है, चाहे कोचिंग हो चाहे कोई भी हो। तो लीड जनरेट करना है तो आपको लोगों को ऐड दिखाना होगा, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट बना के बैठ गए कि मेरा फिटनेस कोचिंग है या फिर मेरा ये कोचिंग है, तो लोगों को तो पता तो चलना चाहिए। तो वो आप लोगों को फेसबुक यूट्यूब ऐड चला सकते हो या ऑर्गेनिकली कर सकते हो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट हाँ, मतलब बहुत तरीका से आपको लोगों को रीच करना है, लीड जनरेट करना है। फर्स्ट स्टेप वो हो गया हमारे लिए। सेकंड स्टेप हो गया कि लीड हो गया आपके पास, मान लेते 100 लोग रजिस्टर कर लिए कि मुझे आपके वेबिनार पे आना है, आपसे कंटेंट सीखना है। सो ये 100 लोग, एंड बाय द वे फॉर ऑडियंस, हम लोग मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे वेबिनार पे। आगे जाकर मल्टीपल चीज भी डिस्कस करेंगे, बट हमारा बिलीफ हम दोनों का, मनीषी का और मेरा, वेबिनार पे मैच करता है। सो वेबिनार करने के लिए एक तो लीड जनरेट कर रहे हो, फिर सेकंड हो गया आपको अटेंडेंस दिलवाना उन लोग को। मतलब करेक्ट। वेबिनार कर रहा है, 100 लोग रजिस्टर किया, बट 100 में से 2 लोग 3 लोग ऑनलाइन आ रहा है आपका जब लाइव आप बोल रहे हो। तो क्या फायदा? कम से कम 5-7, मतलब कम से कम 30-40-50% लोग तो ऑनलाइन आना ही चाहिए। 5-7 लोग आएगा तो क्या क्या ही फर्क पड़ना है आपको वेबिनार पे। करेक्ट। तो उसके लिए भी आपको उनको रिमाइंडर्स भेजना है अलग अलग तरीका से। ये भी बैकएंड का हिस्सा हो गया कि जो जो अपने आप हो रहा है, वन टाइम आप सेटअप कर दो और भूल जाओ। फिर उसके बाद आपको वेबिनार का पीपीटी वगैरह बनाना है। सो हम्म। पीपीटी फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में हो गया। लोगों के लिए फ्रंट एंड हो गया, आपके लिए बैक एंड हो गया। आप पीछे बैठ के जो भी कैमरा के पीछे कर रहे हो, बैक स्टेज बोल लो आप उसको, कैमरा के पीछे करेक्ट। कर रहे हो, बैठ के वहां पे तैयारी कर रहे हो कि क्या डिलीवर करना है क्या नहीं करना है, वो बैक एंड हो गया। फिर फोर्थ स्टेप हो गया हमारे एंगेजमेंट की। जो लोग 100 लोग रजिस्टर किया, 5-6 लोग 10 लोग आपका प्रोडक्ट खरीद लिया वेबिनार पर आके, बाकी 90 लोगों का क्या? ये बहुत ही मिसयूज्ड, मतलब
वर्ड गलत हो गया, बट ये बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट हो जाता है, बहुत लोग नहीं करते, लाइक करेक्ट 90% लोग इसको करते ही नहीं होंगे कि 100 करेक्ट लोग रजिस्टर किया बट 90 लोग। मनीष जी मुझे इनफैक्ट कल समझा रहे थे कि वो 30 रुपए वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके बाद हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, आप समझा दीजिएगा उनको, वो आपके लिए हम छोड़ देते हैं। बट इट्स लाइक वेस्टिंग द मनी, 10 लोग करते हैं बट बाकी 90 लोगों को हम लोग इग्नोर करते हैं, फिर से नया ऐड चलाते हैं, फिर से वेबिनार करते हैं, पैसा कमाते हैं, खुश रहते हैं। सो ये साइकिल रिपीट होते रहता है, बट वो 90 लोग इकट्ठा होते जाते हैं हर बार। वो लिस्ट किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, 2 लाख, बढ़ते जाता है लोगों का लिस्ट, जो आप पैसा देकर स्पेंड करके लाए हो। तो उनको हम लोग कभी यूज ही नहीं करते ना, तो उनको भी हमें कंटिन्यूअस मेल्स भेजना पड़ता है। जैसे कि अभी पॉडकास्ट करने का हमारा एक रीजन ये भी है कि ये मेल्स हम लोग उनको भेजेंगे कि जाओ भाई पॉडकास्ट देख लो, इस टाइप से। करेक्ट एंड फिफ्थ करेक्ट हो गया हमारा रिटारगेटिंग, कि वही उनको बार बार बुलाओ, अब चाहे ऐड से बुलाओ, चाहे ईमेल भेजकर बुलाओ, जैसे भी बुलाओ, ये चीज है। सो ये बेसिकली 5 स्टेप्स हो गया। सो मनीष जी, आप मुझे लोगों को आप वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिएगा क्या, जो फोर्थ वाला है कि 30 रुपया फेंकते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि ये लोगों को रेजोनेट कर पाएगा बहुत बहुत ही, मतलब मैं खुद नहीं कर रहा हूँ अभी बहुत बड़े स्केल पे ये चीज। सो आई आई वांट कि जो भी चालू कर रहे हैं या फिर आगे जाके चालू करेंगे या फिर कर चुके हैं, तो उनको ये पॉइंट तो इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, उसको तो आज से ही कोशिश कर लेना चाहिए उस पे काम करने का। ठीक है। तो टॉपिक पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के पहले एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि क्या आपको ऑर्गेनिक तरह से लीड्स बनानी चाहिए या आपको पेड तरह से लीड्स बनानी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें मैं सिंपल अपना एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, आपको दोनों हम्म। तरह से लीड्स बनानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पेड लीड्स बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यू विल गेट लेजी। if you know that you've pumped in money in your हम्म। Facebook, YouTube, or Google ads, or whatever social media ads, you're getting a constant barrage of leads in your backend, in your email system. So यस। because you're getting these leads, you will not have the motivation to create content. However, as we've also discussed in the earlier episode, to actually become a really good coach, your content helps you tremendously. आपका ब्रांड बनाने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए, अपने कम्युनिटी के साथ एक अच्छा खासा अपना क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। ऑर्गेनिक तरह से आप कंटेंट बनाइए, लीड मैग्नेट्स बनाइए, ब्लॉग्स लिखिए जिससे आपको और लीड्स आएंगी। उसमें हो सकता है कि जो फ्लो ऑफ लीड हो वो लिमिटेड हो, उसमें हम्म। डिस्कवरी को टाइम लगेगा, लेकिन एड्स भी चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एड्स में क्या होता है, एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका ब्रांड बनने को बहुत टाइम लग सकता है, और आपके उस ब्रांड को बनने के बाद में भी आपके पास लीड्स आने को उससे ज्यादा टाइम लगेगा। या हो सकता है अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, जैसे मैं मनीष आहूजा ब्रांड पे जब कंटेंट बनाता हूँ, हम्म। तब मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ, सेल्स के बारे में बात करता हूँ, बिजनेस माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ। लेकिन मेरा जो मेन बिजनेस है पेचेक टू प्रॉफिट में, हम्म। दैट्स ओनली एंड ओनली अबाउट मनी माइंडसेट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। So even if you are my content viewer about business content, you may not be my audience for money mindset. इसलिए ऑर्गेनिक तरह से भी आपको लीड्स बनानी ही चाहिए और आपको एड्स भी जरूर चलानी। अब जो मेन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम्म। हम, सबसे पहले पंकज, डू यू अग्री टू दिस ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, और डू यू फील दैट यू शुड फोकस ओनली ऑन पेड और ओनली ऑन ऑर्गेनिक? इसमें मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रहती है कि स्टार्टिंग में पेड चला लो, क्योंकि हाँ हाँ। बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आता है। आप आज करेक्ट लॉन्च कर दोगे ऐड, तो आपको आज से लीड आना चालू हो जाएगा, 7 8 दिन ऐड करेक्ट। चलाइए और वेबिनार कर लीजिए। बट हाँ, हाँ लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ऑर्गेनिक करना चाहिए। सो ये मेरा थॉट है इस हाँ पे। हाँ, एंड आई कंप्लीटली अग्री टू दिस। सी देखिए, यू कैन नॉट एस्केप पेड एड्स in the coaching business. If you want to scale, if you want to grow, if you want to reach out to a much wider audience, ads is the way to go, because today it is getting more and more difficult to actually get discovered by the customer. यस, एंड बहुत लोग लाइक, मैं सेल्स कॉल करते रहता हूँ कभी, तो लोग बोलते हैं कि कभी कभी कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है तो मुझे ऐड चलाने का जरूरत क्या है? मैं मानती ही नहीं हूँ, या फिर मैं मानता ही नहीं हूँ कि मुझे खुद ब खुद आना चाहिए। सो हम्म जैसा मनीष जी बता रहे थे, पेड ऐड चलाना ही चाहिए अगर आप उसमें रहोगे अपने अकड़ में या किसी चीज में कि नहीं प्रोडक्ट ही अच्छा है, अपने आप आ जाना चाहिए। मतलब सिंपल सा देखो ना, आपके पास लिस्ट कितना लोगों का होगा, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है। फिर आप फेसबुक पे ज्वाइन कर लो, कोई बड़े बड़े ग्रुप्स में ज्वाइन कर लो जहाँ पे 50,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, तो फिर भी आप उसको उस चीज से नहीं कंपेयर कर सकते हो कि एक हो गया आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों के साथ एक्सेस, और उस ग्रुप पे
आप ये मत भूलो कि सिर्फ आप ही नहीं हो वहां पे, 50,000 लोग एब्सोल्युटली और है जो अपना प्रोडक्ट मार्केट कर रहा है। सब कोई मार्केट करने करेक्ट। लगेगा तो वो ग्रुप तो फालतू बन जाएगा, कोई फोकस होना नहीं है। और अगर कुछ लोग ही मार्केट कर रहे हैं तो सिर्फ वो एडमिन अगर मार्केटिंग करता है उस ग्रुप के, आप एडमिन हो तो वो अलग बात है, आप खाली खुद मार्केट कर रहे हो। बट अगर उस ग्रुप के ओनर आप नहीं है, वो आपकी कम्युनिटी नहीं है, चाहे ईमेल लिस्ट पे चाहे कहीं पे भी, सो फिर नॉर्मल बन गया ना, 50 का 50,000 लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और नया ऑडियंस नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा बात है वो सिर्फ सेम लोग बार बार आपका कंटेंट देख रहा है, कुछ भी हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको बिजनेस मिल जाएगा बट बाद में क्या, वर्सेस अगर आप फेसबुक ऐड में चलाते हो, इंस्टाग्राम ऐड में चला रहे हो, यूट्यूब ऐड में चला रहे हो, तो आप पूरे दुनिया को रीच कर सकते हो। तो आप सोच लो कि आपको किसको रीच करना है, 5 लाख 10 लाख लोग, ये भी मैं एकदम बहुत बड़ा नंबर ले रहा हूँ, इतना भी नहीं होता है। 5 लाख 10 लाख लोगों को रीच करना है या फिर पूरे दुनिया को रीच करना है आपको। कंसिस्टेंट एग्जैक्टली बिजनेस चाहिए, तो अगर कंसिस्टेंट चाहिए तो आप ऐड चलाओ। अगर आपको लगता है नहीं मेरा डेली का थोड़ा थोड़ा लीड भी आता है, देख लेंगे चलेगा, तो अब देख लो, जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो आप पेड ऐड चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एड्स is absolutely needed, but so it's equally important to also build on an organic strategy. एक और छोटी सी पॉइंट जो मुझे याद आ रही है, एड्स अगर आप चलाते हो तो योर बिजनेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्सेस प्लेटफॉर्म। कल को यस। अगर आपका फेसबुक का सपोज एड्स में कोई गड़बड़ हो गई, जो बहुत ऑफन होती रहती है एटलीस्ट फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, या हम्म। उसके अलावा अगर पर्टिकुलरली सपोज लीड कॉस्ट अचानक बढ़ गए, आईओएस हम्म। के चेंजेस के वजह से आपके लीड कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है, तो आपका बिजनेस इंटायरली आपके कंट्रोल में नहीं होता। हम्म। लेकिन अगर आपके पास एक कंसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंटेंट स्ट्रेटजी है तो आपके पास हम्म। भले लीड्स कम स्पीड पे आएंगी लेकिन आती रहेगी। तो वो यस। एक और तरीका है लीड्स बनाने का। मतलब दोनों करते रहना चाहिए। ऐड तो करना ही एब्सोल्युटली चाहिए बट पैरेलली आपको ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी भी बिल्ड करना चाहिए, ताकि लोग आपको भी जाने। एंड अगर ऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा तो लीड भी, ऐड ऐड पे भी इफेक्ट पड़ता है, ऐड और सस्ता आएगा क्योंकि लोग आपको जान रहे, हंड्रेड तो परसेंट आपका ऐड ज्यादा क्लिक करने का चांस है, ज्यादा रजिस्टर करने का चांस है, और सेल पे भी फर्क 100%। पड़ेगा। 100%। और अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो कितनी बार क्या होता है, लोग एड पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेते हैं और फिर जाके सर्च करते हैं, अच्छा ये यस। मनीष आहूजा कौन है, मैं देखूँ तो सही। तो फिर वो देखेगा, अरे मनीष आहूजा के पास एक दो या तीन यूट्यूब चैनल है, वो हम्म। कोच आई नीड हेल्प भी पॉडकास्ट भी करता है। तो हम्म। वो ऑटोमेटिकली आपका वो ब्रांड को और क्रेडिबिलिटी मिलती है। यस। अब और अब जो बात पंकज बता रहे थे, हम्म। अब आपने बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया जिससे आपका ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी चल रहा है, आपने पैसे दिए फेसबुक को, ट्विटर को, गूगल को, यूट्यूब को, और आपने लीड्स खरीदी उनसे, ठीक है ना। हम्म। अब क्या होता है, जैसे पंकज ने बताया, लीड्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सपोज अगर आज वेनेसडे है और मुझे संडे को एक वेबिनार करना है, मैं अगर अभी पैसे पंप इन कर दूं, मेरी एड लिटरली नेक्स्ट मिनट पे चालू हो सकती है, मेरे हम्म। को लीड्स मिलना 1 घंटे में चालू हो जाएंगी, और संडे तक मेरे पास इतनी लीड्स आ जाएंगी कि मैं अगर एक वेबिनार करूंगा, हम्म। लेजर वेबिनार का हम्म। प्रोसेस यूज करके, तो गारंटी है कि मेरा वेबिनार का रूम भर जाएगा हम्म। आराम से, 30 40 50 60, डिपेंड करता है मैं कितने पैसे एड्स में डाल रहा हूँ, उसका पूरा यस। कैलकुलेशन होता है। अब एक हिसाब लगा लो, सपोज मेरे पास, इवन इफ आई एंड अप गेटिंग 200 लीड्स, ठीक है ना, ठीक है। कितनी भी मेहनत कर लो, एंड पंकज यू कैन करेक्ट मी ऑन दिस, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, आपके पास अगर 200 लीड्स भी आ गई तो आपका वेबिनार का रूम 100 लोगों से ज्यादा नहीं भरेगा, फिफ्टी यस। परसेंट से ज्यादा। 50% वो हो गया जब आप पूरा टोटल ऑटोमेशन वगैरह करके हाँ सब हाँ हाँ परफेक्ट कर रहे हो। यस, हाँ, नहीं वो तो और भी कम ऑब्वियसली, होता है। of course. So the I just to give you an actual number, the real number is going to be anywhere between 10 to 50, फाइव यस। परसेंट टू 50%। यस। ठीक है ना, 5 लोग तो पक्का आएंगे 200 में से, आउट ऑफ 200 5 people will definitely show up on the Sunday webinar. इस But if you do your, 5 नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि 5 हो गया मतलब अगर 5 रख रहे हो तो आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत नहीं पॉलिटिकल लेट्स से रीच आ रहा है। आपने और कुछ किया ही नहीं, आपने एक एड चलाया, हम्म। ठीक है, आपने और कुछ फॉलो अप नहीं किया, फिर भी मतलब 20% तो लोग आ ही जाते हैं, मतलब मेरे मुझे जितना नहीं भी लगता। एक्सपीरियंस, मतलब ठीक जितना है भी मेरा मतलब, बहुत क्लाइंट्स के साथ हुआ है कि कुछ भी रिमाइंडर वगैरह नहीं भेज रहे, कुछ नहीं कर रहे, ट्वेंटी चलो परसेंट लोग तो ठीक आ है, ही जाते हैं। मैं थोड़ा इसमें पेसिमिस्टिक हूँ, चलो मुझे ठीक है, लगता हम है कि लोग फाइव कम टू लेते टेन हैं। परसेंट और पंकज बोल रहे हैं कि 20%, तो उल्टा अच्छा ही है, अगर आपके पास 20% क्राउड भी आ गया आपके यस। वेबिनार के लिए तो आपके लिए अच्छा ही है, बट ओके, लेट्स गो बैक टू द होल टॉपिक कि यस। बाकी यस। के 80% का क्या। यस। यस। सपोज आप अभी तक लेजर वेबिनार नहीं यूज कर रहे हो, आप अपना हम्म। पुराना तरीका ही यूज कर रहे हो, तो भी आपके पास 20% क्राउड आ गया, आप लेजर वेबिनार यूज कर रहे हो, आपके पास 50% लोग आ गए, यस। तो 100 लोग आ गए आपके वेबिनार के रूम में,
बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज जितने लोग आए हैं उतने ही लोग नहीं भी आए हैं। जो 100 लोग हैं वो आपको रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन लेट्स से वो कोई दूसरा कमिटमेंट आ गया, लेट्स से वो उस दिन बिजी थे, लेट्स से हम्म। उन वो भूल गए, लेट्स से अचानक से कहीं उनको जाना पड़ा, घर पे कोई कुछ भी गेस्ट रीजन आ हो गए, सकता है। कुछ भी हो सकता है, हम्म। एंड दे डिड नॉट अटेंड द वेबिनार दैट दे had signed up for. यस। Now, what is important is you literally paid a platform हम्म। rupees money to get that person's email address, that lead. Okay, let's say an average is 30 rupees per lead. राइट। एवरेज है, मतलब इससे बहुत हम्म। ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम यस। हुआ तो क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर गारंटी नहीं है, लेकिन 30 रुपए की एक आप लीड समझ के चलिए। यस। यस। Now, अगर आप वो 100 लोगों को सिर्फ एक अपने लिस्ट में डालकर भूल जा रहे हो, अगर आप उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हो, अगर आप उनको नर्चर नहीं कर रहे हो, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू आर टेलिंग फेसबुक आप मुझसे पैसे ले लो, हम्म। लेकिन मैं इस पैसों का कुछ करूंगा नहीं। तो मैं पंकज को ये समझा रहा था, आप इमेजिन कीजिए, आप नहा धोकर अच्छे से सब फ्रेशन अप होकर आप घर से बाहर निकल रहे हो, और हम्म। आप अपने घर से लेके 1 किलोमीटर दूर कोई दुकान पे जा रहे हो और वापस आ रहे हो, तो आपका 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हम्म। और आप हर 50-50 मीटर में 30 रुपए गिरा रहे हो रोड पे, एक एंड एक यू लीड फॉरगेटिंग गिरा अबाउट, रहे। हाँ, and you're forgetting about it. So by the time you're done with those 2 kilometers, you would have lost so much money. But at the same time, if you actually, so that 30 rupees is the lead that you are collecting. Every 5-10 minutes, you're getting a lead through your ads. Okay. हम्म। What you need to do is you need to nurture these people. You need to keep sending them value emails. You need to tell them about the new content that you're creating. You need to show them that you are dedicated to your business, to your brand, to the kind of coaching that you're doing. You need to show them success stories of your people in your हम्म। community. You need to show them the kind of activities that you're doing for the community. When you do this, जो 100 लोग आपके वेबिनार के लिए रजिस्टर किया था लेकिन वो नहीं आ पाए थे, दे एटलीस्ट डोंट फॉरगेट यू, करेक्ट। दे रिमेम्बर हु द पर्सन इज। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पंकज बता रहे थे कि आरओएस, पॉजिटिव आरओएस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। आप 100 रुपया डालिए, आपको 200 रुपए का बिजनेस आराम से मिल जाएगा, 1000 यस। डालिए 2000 का बिजनेस मिलेगा, 10,000 डालिए 20,000 का बिजनेस मिलेगा, ये पूरा मैथ्स है। हम्म। as far as you have a good product, you have your presentation done very solid, and if you're delivering it correctly, it's very easy to get a positive ROAS on your ads. But what is more important is, with very little effort and minimal cost, you can multiply that ROAS. If you're getting 2x, you can actually take it to 3x or 4x for the same amount. तो अगर आप उस लीड की पूरी लिस्ट को अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो, नर्चर नहीं कर रहे हो, तो आप हर बार समझ लो, एवरी डे व्हेन यू आर नॉट सेंडिंग एन ईमेल और नॉट पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, आप हम्म। समझ लो आप हर आधे घंटे में 10-10, 20-20, 30-30 रुपए गिरा रहे हो, एंड यू लिटरली फॉरगेटिंग यस। अबाउट इट। यस। एंड वो आधा घंटा वो 1 सेकंड भी हो सकता है, और 1 सेकंड में 1000 लीड भी गिरा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके स्केल पे हो। Of course, of course. यस। So, huh. So all the coaches who have been running ads for the longest time and who are not following up with their leads through emails, regular value emails, please note this very strongly, because when you nurture your leads, only your business is going to grow. Pankaj और मुझे मेरा कोई फायदा नहीं है, but we really, यस। really want quality coaches to create a brand where they are constantly in touch with their community and leads. यस। करेक्ट। क्योंकि कल मैं भी मनीष जी को बता रहा था कि मेरे कोचेस से जो भी क्लाइंट्स होते हैं या फिर खुद मेरा होता है, 2x तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आता ही है। मतलब अगर 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं, ऐड में 1 लाख खर्चा कर रहे हैं, तो 200 या 2 लाख रुपए तो वापस आता ही आता है। तो मनीष जी मुझे बोले कि 100 रुपया खर्चा करके 200 क्यों लाना है, 100 रुपया खर्चा करके 3,000 पर 5,000 क्यों नहीं लाना है। बोले हाँ ये भी सौ सही है। से 3,000 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 1,000 से 3,000, 4,000 बराबर, 3x 4x लॉन्ग टर्म में ROAS। मतलब लाइफ हाँ टाइम हाँ, वैल्यू तो आप ले ही ओ, सकते हो। वो तो एक अलग ही स्ट्रैटेजी है, मतलब उसके लिए हम प्रोबेबली एक यस। अलग यस। एपिसोड करेंगे। वी टॉक टू यू अबाउट वन ऑफ आवर मेंटोर्स, दीपक कनकराजू, एंड we both met through Alpha Club, which is Deepak's premium brand today, and how he created 1 crore worth of business without a single rupee of marketing. मतलब वो यस। अपने आप में इतना strong case study है कि we'll probably talk about it अ in some सिंगल other episode. पॉडकास्ट बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। Absolutely, because the kind of value we've gotten from, we'll probably do that in April, because if everything goes right, we may end up meeting for the first time, and by the end of this month, we'll talk about that some in our यस। future episodes.
यस। ओके। 1 करोड़ फ्रॉम, सो मैं लिख लेता हूँ ये टॉपिक कि हाँ, उस टॉपिक पे पर्टिकुलर पॉडकास्ट करना है। जरूर जरूर यस। जरूर। सो जो रिटर्न और एड स्पेंड्स वगैरह हम लोग बात कर रहे थे कि 1 रुपया खर्चा कर सकते हैं, तो ये बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि हम लोग आज बात कर रहे हैं कि किसको आना चाहिए। सो लोगों को कभी कभी ये भी लगता है कि इसमें पैसा कमाई होता है कि नहीं है। सो आप रिटर्न हम्म। और एड स्पेंड्स बता रहे थे, 100 रुपया खर्चा करके 200 रुपया वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे। सो उस पर मेरे पास एक 10 मिनट का वीडियो है, मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। श्योर श्योर। तो आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हो कि कितना रुपया खर्चा करना चाहिए, कैसे वेबिनार काम करता है। बहुत डीपली आपको नहीं घुसना उसमें, बट आप अगर एज अ स्टार्टर हो तो बट एक आइडिया आप लगा सकते हो, क्योंकि कितना कमाई होना है वो भी आपको जानना जरूरी है उसमें। हाँ, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, ये मैथ्स है, यस। इसका लॉजिक अगर आप समझ जाओगे, एंड देयर इज नोबडी बेटर देन पंकज टू टेल यू अबाउट दैट, बिकॉज ये दिन रात यही करते हैं। यस। ठीक है। मनीष जी, ऐसे तो टॉपिक हमारे पास बहुत है, बट एक एक पॉइंट मैंने नोट किया था कि एक टर्म यूज किए थे हम लोग, लीड मैग्नेट। हाँ हाँ। और पूरा ही कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो मैं लोगों को एक बता देता हूँ कि लीड मैग्नेट क्या है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे फेसबुक को पैसा देना है और हम लोग को लीड लेना है। पैसा दे रहे, ईमेल लिस्ट खरीद रहे। सो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अ, आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हो, चाहे ई बुक दे रहे हो, चाहे वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो, चाहे अपना एक फ्री कोर्स दे रहे हो, चाहे कुछ भी दे रहे हो, लोगों को आप एक चीज दे रहे हो। तो वो चीज को एक्सेस करने के लिए लोग आपको अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर देता है। तो वो चीज को करेक्ट। हम लोग लीड मैग्नेट बोलते हैं। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग इन डिटेल्स आगे फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे, प्रॉपर करेक्ट, एपिसोड्स में। कोचिंग बिजनेस के लिए लीड मैग्नेट अपने आप में एक बहुत पावरफुल और बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, तो वील डेफिनेटली डू एन एपिसोड ऑन लीड मैग्नेट आल्सो इन द फ्यूचर, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड if you've already been watching this episode for all this while, thank you so much for your time. Do not forget to यस। give us a like, because the more likes you give us, it motivates us, and it also lets YouTube know that you like this sort of content, and it helps our episode to reach out to more coaches like you. So thank you so much. Please do not forget to give us a like. यस, एंड मेरे साइड से ऑलवेज कमेंट, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। Sure. Thank you so much. ठीक है। So, what next would you like to talk about, Pankaj? We have so much more to cover. Yes, yes. So I'll just take this question. What to expect Hmm. from your coach? How to choose a coach? Okay, perfect. So, So would I you would like to like talk you about? to, no, I would Okay, like you to get started on that. okay. So, tell me again, what do you What, expect from a coach yes, what should you as a expect from a, customer? yes, as a हाँ, customer भी? ये है ना, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता था कि इस एपिसोड में आए, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट फॉर कोचेस, एंड आई वुड रियली लाइक टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ क्वालिटी कोचेस। हम्म। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं इस इंडस्ट्री में कि हम्म। हर तीसरा बंदा लोगों को कोच बनाने के पीछे तुला हुआ हम्म। है, एंड हर इंसान सही स्ट्रैटेजीज यूज नहीं कर रहा है, somebody is just bringing in people with the hope of money money money. I हम्म। want to create a community of very strong coaches through coach I need help, and इसके लिए ये क्वेश्चन को मैं एज अ कस्टमर हैंडल करूंगा। इफ आई ठीक एम है। द कस्टमर, what do I expect from a coach? What will I look for in a coach? ओके। And as a coach, you make sure that you are trying to deliver on all of these points, if not all, at least most of these points. Because when यस। you deliver these things to your customer, they are going to find so much value that they are going to just be become your fan for life, which is the most important thing that we need to do in our business. यस। ठीक है ना? So, as a customer, what would I expect from a coach? First of all, I would expect a lot of experience in the field that they're coming from. When I say a lot, I mean at least 1, 2, 3 years where they've studied, they've understood whatever they are teaching, they've applied it in their life, they've gotten some sort of uh, transformation in their own life, minimum. अगर सपोज फॉर वट एवर रीजन, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उस नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर a television host talking about stocks, you are not allowed to invest in your own in the stocks that you talk about, you're not supposed to invest in equities, तो वो एक exceptional case हो गया, but even then, have you helped multiple people learn how to pick up the right stocks? ये तो आप कर ही सकते हो। So what is your expertise, what is your learning, what is your background, what kind of transformation have you had in your life, what kind of transformation have you had in your other participants life, what kind of content are you creating, what is the depth of your knowledge, how are you nurturing your lead uh, email list, what kind of
value emails are you sending, or are you just sending them emails of attend my webinar, attend my webinar? I want to give my money to authentic coaches. I want to give my money to coaches who I know are in the business to make a difference and not just to make money. हम्म, भाई अगर तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना था तो तुम कंटेंट क्रिएटर बन जाओ आज की तारीख में, उसमें भी बहुत इजी, रिलेटिवली इजी है पैसा कमाना। बहुत इजी कहीं नहीं होता है, बट हाँ, इफ यू ओनली वांट टू क्रिएट मनी without giving value or tangible value to a community, you might as well just create content, become a content creator. But अगर आप coach बन रहे हो, you need to give tools, you need to give a step by step system, you need to create a mechanism which will tell your participant where do they stand, what are the next two steps that they need to take, what are the steps after that, what are the steps after that, so that they can reach to the transformation that you're promising. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आई स्टार्ट फ्रॉम ए, माई कोच टेल्स मी वेयर डू आई स्टैंड, वेयर शुड आई रीच, एंड व्हाट इज माई प्रोसीजर टू रीच वेयर द कोच इज प्रॉमिसिंग मी टू रीच। यस। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और मेरे लिए अगर इसमें ऐड करना चाहूँ तो मुझे चाहिए कि कुछ लाइव सपोर्ट टाइप का भी कुछ मिले, मुझे बस एक हाँ, रिकॉर्डेड कोर्स पकड़ा ना दे, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स अगर मुझे कंज्यूम करना तो फिर मैं जाके यूट्यूब में भी हर चीज का वीडियो मिलता है मुझे। सो करेक्ट। मुझे चाहिए कि अगर मैं कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जब भी मैं अटक रहा हूँ उस ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में, तो मैं उनसे हम्म। जाके हेल्प ले सकता हूँ, चाहे वो वीकली ईमेल्स के थ्रू मिले चाहे लाइव सपोर्ट मिले, बट डायरेक्टली मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ये मुझे चाहिए। क्योंकि मैं उनके लिए करेक्ट। आया हूँ प्रोग्राम में, ना कि उनका सिस्टम या किसी के लिए। सिस्टम भी ऑफ कोर्स जरूरी है, बट मेरे लिए मतलब उनसे कनेक्शन ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू इस प्रोसेस। Correct. So, huh, and I completely agree to this. So, yes, this is also one of the important points which I somehow forgot, that you need to, as Pankaj said, there has to be a mechanism for somebody to get answers to the questions. क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोग्राम बना लो, आप कितना भी अच्छा कम्युनिटी बना लो, आप हर इंसान के सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई मैकेनिज्म है जहाँ पे दे कैन सेंड यू एन ईमेल एंड यू रिप्लाई बैक, और यू डू अ वीकली mastermind call where you give an open forum to all your participants where they can ask you a question and you answer questions one by one, उससे क्या होता है कि आप किसी को 0 to 9 तक लेकर जाते हो, लेकिन वो एक पॉइंट की वजह से जब वो अटक जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। व्हेन यू वॉच कंटेंट ऑन यूट्यूब, you get a lot of clarity, but you don't get the whole confidence to execute and make that next step. When you can buy programs for so economical prices on platforms like Udemy and Coursera, but then there are so many people who buy these programs but they never finish it because there is no connect with the person who's created that program. So that यस। connect with the coach, connect with the community is very important. So yes, I completely agree. A very good point, Pankaj. Yes, there has to यस। be a Q&A mechanism. यस एंड थोड़ा बहुत कंटेंट ये फ्री में देते रहे, जैसे कि लास्ट लास्ट एपिसोड में भी हम लोग डिस्कस किए थे और आप भी थोड़ा सा कवर किए इसको ऑलरेडी, कि एज अ कोच आपको लोगों को फ्री कंटेंट भी डिलीवर करते रहना पड़ेगा, नॉट जस्ट बाय ईमेल्स, बट आप यूट्यूब में कंटेंट डाल दो, कम्युनिटी बना के Of कंटेंट course. डाल दो, ताकि आपका प्रोग्राम खरीदने से पहले भी लोगों के पास एक ऑप्शन रहे कि आपको टेस्ट कर सके कि आपका पैटर्न क्या है, आप कैसे पढ़ाते हो, क्या करते हो। ना कि आप डायरेक्ट Yes. जाके एक बड़ा बहुत महंगा सा प्रोग्राम बेचो और वही बेचो ही कि लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। नहीं। यस। So that is the whole concept why we've created this podcast, right? ताकि यस। कितने लोग हैं जो कोचिंग कम्युनिटी में ऑलरेडी आ चुके हैं but they've not created their business because they don't know what to do. And there are so many people who wanted to become a coach and they don't understand how does this industry work. Especially Indian context में, देखिए internationally a low ticket product, there are sometimes lead magnets which get sold at $100 because over there, because of the economy the way it is, people will spend $100 without thinking twice. और इंडिया में एक लेवल 1 प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली $100 का बेचा जाता है। तो यस। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आई नो ऑफ अ कोच जिसका लीड मैग्नेट ही $300 का बाहर की है। इंडिया में। नहीं, बाहर। ही इज अ यस। वेरी प्रोमिनेंट सेल्स कोच, आई वांट टू गो थ्रू हिज प्रोग्राम, बट हिज लीड मैग्नेट इटसेल्फ इज $300। तो मुझे पता है कि उसका जो लेवल 1 या नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम होगा वो कम से कम 1000 $1500 का होगा। तो मैं उस हिसाब से अभी तक उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा। यस। एंड उनका आई एम श्योर फ्री कंटेंट तो ऑलरेडी होगा मार्केट में, जरूरी बहुत नहीं है लोगों को बहुत। लीड मैग्नेट खरीदना, उससे पहले भी ना ना एक्सपीरियंस ना। कर सकते हैं। हाँ, the reason why I've decided to go for that lead magnet is because I've gotten so much value already from his free content. So yeah. बस प्रूव हो गया पॉइंट हमारा हाँ हाँ, कि फ्री absolutely. कंटेंट कितना जरूरी है। ठीक है मनीष जी, मुझे ये बताइए कि हम लोग डिस्कस किए एक अच्छे कोचिंग प्रोग्राम में
क्या क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन के पहले ही हम लोग डिस्कस किए कि एज अ कोच आपके पास कम्युनिटी बिल्ड होना चाहिए। एज अ हाँ। कोच आपको Q&A देना चाहिए कि लोगों को कुछ भी डाउट रहे तो आपसे पूछ सके। एंड थर्ड वर्स की ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो इसको आप हम्म। पूरे मैकेनिज्म को एक बार पूरा रिकैप कर सकते हो क्या प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप की? एक प्रोग्राम में अगर आप कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, पेड प्रोग्राम, तो उसमें आपको क्या 5-7 चीज रखना चाहिए कि होना ही ठीक है, होना जरूर। चाहिए? Okay. So we'll run through this very quickly because we've already covered it यस in यस यस today's episode and multiple यस things. So repetition now, but एक बार establish हो जाए सारी चीजें. यस। तो फर्स्ट यू नीड प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स, क्योंकि हम्म आप जो भी कंटेंट देना चाहते हो, आप कितना भी अच्छे से डिलीवर कर लो, आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स मोनोटोनस एंड रिपीटेटिव. सो आई बिलीव क्रिएटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोग्राम जो आप एलएमएस सिस्टम में अपलोड कर दो, तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है एंड योर हम्म पार्टिसिपेंट्स गेट द ऑप्शन टू वॉच दोज प्रोग्राम्स एज हम्म। पर देयर कन्वीनियंस. तो प्री यस। रिकॉर्डेड प्रोग्राम जरूरी है. उस प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए, इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी है, व्हिच डज नॉट हम्म। नेसेसरली हैव टू बी अ फेसबुक ग्रुप. टुडे देयर आर यस सो मेनी बेटर कम्युनिटी software, so you can buy a membership of a community software and your participants can interact on that community. You यस। need to give your weekly coaching Q&A calls where people who are going through your program, they'll have questions and they'll ask you questions and you answer them for answer those questions for them. You have हम्म to have a proper system which is a step by step process, as I told you. हम्म। कि this is where you stand, this is where you need to get, this is the gap area, this is how you fill the gap area, this is what you do first, then second and third and fourth. There has to be a methodology. Now when you have a step by step process, you also have a methodology. जैसे खाना बनाने के टाइम पे एक रेसिपी होती है, हम्म। वैसे ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन की रेसिपी क्या है, क्या आपको पहले करना है, क्या आपको बाद में करना है, क्यों यस। ये चीज पहले की जाती है, क्यों ये चीज को बाद में करना चाहिए. एक सिंपल है. आप लैंडिंग पेज पहले बनाओगे कि पहले एड्स चालू करोगे? ऑब्वियसली पहले लैंडिंग पेज बनाओगे, तब जाके तो एड्स पे लोग आपके हम्म। लैंडिंग पेज पे आएंगे. तो वैसे मेथोडोलॉजी क्या है एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. हाउ डू आई इवन ट्रैक मैं ए पे था और आज मैं डी पे पहुंचा हूँ, एफ पे पहुंचा हूँ या लेवल एम पे पहुंचा हूँ. उसके लिए भी हम्म मेरे पास एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. मुझे मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन मैं अच्छे से समझ पाऊँ, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, उससे मुझे समझ में आएगा अच्छा व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी. हम्म। तो ये सारा मैकेनिज्म, ये सारा इकोसिस्टम बना लेना बहुत जरूरी है कोचिंग प्रोग्राम के लिए. यस एंड ऑफ कोर्स केयर होना चाहिए कि आपको स्टूडेंट को बस आपको बस पैसा कमाने से फोकस नहीं होना चाहिए। आपको रियल में हेल्प करना चाहिए उनको कि उस माइंडसेट से आपको प्रोग्राम बनाना है। दैट इज अ गिवन, दैट इज लाइक अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट. वो आपके प्रोग्राम में नहीं, वो आपके कॉन्शियस में होना चाहिए. यस। सो वो भी होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली, यस। एब्सोल्युटली. ठीक है। फिर हमारा एक क्वेश्चन था कि व्हाई शुड यू कंसिडर कोचिंग बिजनेस फॉर योरसेल्फ? लोगों का क्या फायदा है? तो पहला फायदा तो हम लोग डिस्कस किए बहुत डिटेल्स पे, जो वीडियो भी हम शेयर करने वाले हैं, कि पैसा हम्म. कमाओगे, खूब खूब पैसा कमाओगे, बहुत ज्यादा। कमा सकते हो, कमा सकते हो, कमाओगे, गारंटी नहीं है आपको, और बहुत सारी चीजें अच्छे से करनी होगी. अगर आपने एक बार सारी चीजें अच्छे से कर ली तो हाँ, आप बहुत पैसा कमाओगे, उसमें कोई यस। डाउट नहीं. और सेकंड हमारा था कि जो फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे कि यही फ्यूचर है। ऑफ कोर्स. और थर्ड और फोर्थ पॉइंट कुछ अगर आप ऐड करना चाहो इसमें तो क्यों चूज करना चाहिए कोचिंग? I'll tell you the main reason why I love this business more than anything else. I come हम्म from a family business setup. हमारे पास रिटेल स्टोर्स हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम हम्म ट्रेडर्स भी हैं, हम प्लास्टिक में ट्रेड करते हैं, हम इन्वेस्टर्स भी हैं, हमारे पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है, हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, पोर्टफोलियोज है. आई कम फ्रॉम अ हम्म। financially free family, but at the same time, we are also business owners. So I have seen multiple businesses start, grow, flourish, and this is just not my family. My हम्म maternal family is also into business over there. We are brand owners. We are again we own MBOs and retail stores. So बहुत सारे अलग अलग businesses को मैं बहुत नजदीकी से समझता हूँ. ठीक है ना. हम्म। उन सारे businesses की problems actually मुझे coaching business में नहीं दिखती. यू कैन रन अ कोचिंग बिजनेस विद अ वेरी लीन टीम. 5-6 लोगों की टीम के साथ आप एक बहुत अच्छा कोचिंग बिजनेस चला सकते हो, विच इज नॉट नेसेसरली पॉसिबल in today's times and other businesses. Today, if you यस। start a retail store itself, you will need a team of 5, 10, 15 people. यस ठीक है ना. इनफैक्ट टीम का अगर बात करें तो कुछ कोचेस हमारे साथ जुड़े हुए जो सिंगल हैंडेडली भी वो काम कर रहे हैं कुछ टाइम से। स्टार्टिंग में आप करेक्ट.
एक मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ को वाला जर्नी आप खुद से भी कवर कर सकते आराम हो। से, आराम से. So when I'm talking about 5, 6, 7 people team, I'm talking when you actually become very big, and यस, creating a business of a couple of crores only by yourself and इट्स getting पॉसिबल। help from one or two quality agencies is absolutely possible. तो ये सबसे पहली बात दूसरे बिजनेसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता. सेकंड, इफ यू आर डूइंग फिजिकल बिजनेस, एक चीज है जो हमेशा बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो ये है कि आपने गुड्स डिलीवर कर दी एंड देन यू आर नाउ वेटिंग फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल, पेमेंट रिसीवेबल. हम्म। मुझे हमारे बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमें पहले कस्टमर पैसे देते हैं और उसके जैसे ही पैसे देते हैं हम इमीडिएटली प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं. यस, आज नगद कल क्योंकि उधार वाला कॉन्सेप्ट। कोई आज नगद क्या, अभी नगद और अभी ही प्रोडक्ट डिलीवर, वैसा है. ये अपने आप में एक फिजिकल बिजनेस के साथ कंपेयर करने पे बहुत बड़ा फर्क है. तीसरी चीज, आप इस बिजनेस को एक अलग ही लेवल तक ऑटोमेट कर सकते हो. लिटरली देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपका एक एड कोई देखे, आपका एक लीड मैग्नेट के लिए वो साइन अप करे, ऑटोमेटिकली उसको ईमेल्स मिलते रहे, आप ऑटोमेटिकली उस लीड को नर्चर करो, उसको एक वीएसएल तक लेके जाओ, वीएसएल देखने के बाद में वो आपका लेवल 1 प्रोग्राम खरीदे और ये पूरा सिस्टम पूरा का पूरा ऑटोमेट हो जाए. यस, आप, हाँ. एक मैं ऐड कर देता हूँ, वीएसएल मतलब एक छोटा सा ऑटोमेटेड वीडियो हो गया, जो वो हाँ, ट्रेनिंग ही है। मैं वही बोल रहा ओके। था ऑडियंस को. अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको ये थोड़ा सा बाउंसर हुआ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजों के बारे में हम आगे वाले एपिसोड में बात करने वाले. बट हाँ, यस। द आइडिया इज इस पूरे इंडस्ट्री में आप बहुत ज्यादा ऑटोमेशन यूज कर सकते हो. जैसे पेचेक टू प्रॉफिट का एग्जाम्पल ले लो. हम्म। My target audience is working professionals, entrepreneurs, people particularly working, let's say, in aviation and hospitality industry, people working in media industry, people working in the healthcare industry, doctors and so on, people working in engineering backgrounds. So I can literally create automated lead magnets for all of these product audience categories. हम्म। So if you are a doctor, you will see an ad which is created only for doctors. You will see a lead magnet which is created only for doctors. You will go through that lead magnet. You will see videos which are created only for doctors, and you will buy the program which is made for everybody. यस, मतलब यही हो गया ऑटोमेशन का मतलब, कि आप जब सो रहे हो या फिर जब हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, तब भी लोग आपका ऐड देख रहे हैं, लोगों के पास ऐड जा रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, कोर्सेज भी कंज्यूम कर रहे हैं, सब अपने आप चल रहा है मैक्सिमम चीज। Exactly. So basically, you can build a good business without having a very big team. You हम्म। don't have to worry about payment follow up. You don't have to, and you can automate everything. One extremely important point, this entire business, the only thing that I need to run this business is my laptop and an internet connection. यस। I can literally run my business to a very good amount of efficiency, irrespective of what place I am in. And यस। I can literally go backpacking to Bali for 6 months and I can run my business from there. क्या करना है मुझे? कम्युनिटी कॉल्स करना है, मुझे वेबिनार्स करना है. आई पिक अप अ co-working space in Bali and I start doing my webinars from there. यस। अगर आपकी रिटेल दुकान है तो ये 6 दिन के ऊपर करके दिखाओ. आप मुझे रिटेल दुकान लेके जाओ बाली 6 महीने के लिए. रिटेल दुकान लेकर जाओ, हनुमान जी थोड़ी है कि रिटेल दुकान लेकर जाओ। हाँ, बट नहीं, द रीजन आई एम सेइंग दैट इज क्योंकि मैं अपना बिजनेस लिटरली हनुमान जी की तरह लेके जा रहा हूँ ना, एक लैपटॉप में अपने साथ. यस, यस, यस। तो ऐसे बहुत फायदे हैं. एंड आई टेल यू वन मोर वेरी बिग point, which is a very philosophical point, and it is not necessarily a point which you will understand if you're coming from a hardcore business concept, which is the happiness that you get when you get that thank you email, that happiness that you get when you see a 5-star review on Trustpilot, that happiness that you feel when you hear that testimonial from your participant telling you how your programs is helping them overcome their money blocks, you know, get attract more wealth through law of attraction, change their life because they understand the concept so much better. Their relationship with money has changed. Now they don't fear when they are buying a new laptop or a new television, or they don't think twice before spending their money because now they're actually enjoying the money that they make. That यस। cannot be compared to any other business in the world. There are very, very, very few businesses that come with this level of satisfaction. यस, इनफैक्ट कभी कभी हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि ऐसा टेस्टिमोनियल भी आ सकता है, फिर आने के बाद पता चला अच्छा इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो गया क्या। मतलब बहुत सारे ये स्टूडेंट्स सम का होता है। ये somehow मेरे
को बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे रजिस्टर हो गया था, इवन बिफोर आई हैड एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि I had seen testimonial videos in the past. And when I got into this industry, I came from a very disturbed place. So I could just see people who are already in this industry and the kind of transformation they've gone through. तो उसमें मेरे को खुद को भी एक इंस्पिरेशन मिल गया था और मेरे दिमाग में आ गया था, हाँ ये मुझे भी अपने लिए चाहिए. So यस। it has been one of the factors that has always driven me. यस, और मेरा इस कोचिंग इंडस्ट्री में आने का रीजन ही, अच्छा एजेंसी चालू कर रहे, एजेंसी और ये मेरा जर्नी थोड़ा मिक्स्ड रहा है, बट Hmm. इस कोचेस वाला जो निश है मेरा, इसमें आने का रीजन ही वही था कि इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। लाइक कोविड के टाइम Exactly. पे मैं पूरे फुल फ्लेजेड वे में आया था उससे कुछ मंथ्स पहले, बट कोविड के जस्ट बाद मैं इसको एकदम चालू ही कर दिया था पूरे प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले फेसबुक एड्स, मतलब कोविड से पहले 4-5 महीना पहले से मैं कर रहा था कि फेसबुक एड्स पढ़ा रहा था लोगों को, वर्कशॉप सिखा रहा था, जो मैंने फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में अपना जर्नी कवर किया था। तो पूरे Correct. लोगों को फेसबुक एड्स वगैरह सिखा रहे थे। फिर एक लेडी आई मेरे पास, वो फेसबुक एड्स देखकर, मतलब वो वर्कशॉप अटेंड करने। तो वो बताई कि मेरा इंस्टीट्यूट क्लोज हो रखा है पूरा, पहले मेरा इतना अच्छा चल रहा था, अब कोई उपाय नहीं है, लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, हम क्या करें। तो Hmm. उनको हम ऑनलाइन ले गए। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिसका पूरा रोजी रोटी काइंड ऑफ बंद हो सकता है पूरा, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है तो वहां से चला रहे, बट थोड़ा बहुत ऑर्गेनिकली आ जाएगा, फिर क्या। बट उन लोगों हम लोग ऐड चलाकर उन लोग को ऑनलाइन ले गए, और फिर यही केस हम सबके लिए रेप्लिकेट कर रहे हैं, जो भी कोचेस थे, चाहे खुद से कोच करके कर रहे, चाहे एजेंसी में लेकर कर रहे, बट ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि वो लोग जो जीरो कमाना हो सकता था उनका, जब तक पता नहीं था कितना कोरोना रहेगा, वो अपना बिजनेस को वापस से रिज्यूम किए, और उससे 10 गुना एक्स्ट्रा सब ग्रो कर रहे थे, जो सोचे भी नहीं थे। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स में इधर उधर पोस्ट कर करके वो लोग 50, 60, 70 हजार, 1 लाख कमा रहे थे। आज वो लोग 2 साल का जर्नी में 5 लाख 10 लाख पर मंथ का प्रॉफिट्स कर रहे हैं आराम से। और कोई कोई मैक्सिमम लोग तो मेरे जो अभी क्लाइंट्स है, वो सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं, और कहीं से भी कर रहे हैं, उनको टेंशन ही नहीं है। अब उनके लिए उनको 50 हजार रुपए का जो कमाई होता था, वो उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो 5 लाख कमा रहे हैं, वो भी उनको छोटा लग रहा है आज, कि अच्छा Of बस course. 5 ही लाख कमा रहे हैं, थोड़ा और ग्रो कराइए ना। तो मतलब इतना Hmm. कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, उनमें से जितने भी क्लाइंट्स है, इतना इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और घूमने का वाला पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लाइफ में ऐसे एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि मेरे लिए ये घूमने वाला बात है, बट मेरी वाइफ के लिए कभी कभी उनको ऑफिस जाना रहता है, उनको Hmm. फिजिकली। सो उनको अगर बैंगलोर में जॉब लग रहा है तो मैं बैंगलोर में आ जा रहा हूँ, तो अभी वो जॉब चेंज करके शायद मुंबई जाएगी, मैं मुंबई Hmm. जा सकता हूँ। कल उनको सिंगापुर में जॉब लग रहा है, मैं सिंगापुर जा सकता हूँ। सो ये रियलिस्टिक एग्जांपल हो गया मेरे लिए भी, कि मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं, वाइफ कहीं और रह रही है, मैं कहीं और रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बिजनेस यहीं पे, तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ कहीं पे। करेक्ट, या तो फिर बजरंग बली बनिए और अपने रिटेल स्टोर को ले जाइए कहीं और. यस। बस मेरा एक ही अभी एम है जिंदगी में, जो अभी नहीं हो पा रहा है, कि उनको भी लेकर आना है मुझे। बट वो हमेशा ही दिक्कत होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। नहीं मतलब चलो ये पॉइंट पे आया तो शुड एवरीबडी बिकम अ कोच? यस। ये यस। आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो बिकॉज can everybody become a coach? 100%. But should everybody become a coach? Not necessarily, because ये मुझे पहले लगता था अरे हर इंसान को कोचिंग में घुसना तो चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करके तो देख लो. हम्म। क्या है मतलब, मेरे एक मेंटोर का फ्री प्रोग्राम है, वो ले लो मुझसे मुझसे हाँ। कनेक्ट करके वो फ्री प्रोग्राम ले लो और समझ लो थोड़ा. लेकिन नहीं, खास करके जब मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो चीज है सेटअप करना, ये अपने आप में इतना एक, देयर इज रिस्क इन्वॉल्व, देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज some sort of dependency only on yourself, that self dependency. You don't have the confidence, you don't have that sort of personality. ये हर यस। इंसान में उतने लेवल तक पॉसिबल होना मुश्किल होता है. हम्म। If you are already running, if you have a successful career or a business and you are happy doing what you are doing, it's perfectly okay. You don't necessarily have to change your field to become a coach. हम्म। But if you feel you're not necessarily happy with what you're doing, if you feel that there is a scope of improving the quality of your life, and if you love helping people, definitely consider coaching. राइट। तो अगर आपकी वाइफ अपने करियर में खुश है, अगर if she is really happy doing her job, why? It's perfectly okay. She is not a coach. यस, दैट इज ट्रू। और किसी Hmm. किसी का होता भी है, लाइक कि मुझे कोचिंग, जैसे कि हम लोग पूरा इस पॉडकास्ट में कोचिंग एज अ बिजनेस ही कंसिडर कर रहे हैं, तो हाँ. किसी किसी को लगता है कि नहीं, मैं जॉब के लिए ही हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना है, तो वो भी माइंडसेट करेक्ट. होता है। करेक्ट.
and absolute respect for that mindset too. यस। सो इसी बात पे मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको आदत नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई है, वो मेरी वाइफ का ही बात कर लेते हैं, हम्म। उनको समहाउ अगर लाना हो, मतलब अगर मे बी कोई आईटी एम्प्लॉय है या कोई भी है, उनको चालू करना है कि चलो हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं, अपना करियर देखते हैं कि कोचिंग बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं है। हम्म। बट उनको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं? लोगों से बात करने का ये एक्सपीरियंस नहीं है, ऑनलाइन ग्रुप कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको आना ये चाहिए नहीं आना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। टेल मी हम्म। इफ यू ओके विद दिस। हम्म। हाउ शुड अ न्यू कमर बिकम अ कोच? ठीक है ना, ये वैसे भी हम्म। हमारा नेक्स्ट एपिसोड है, हाउ टू बिकम अ कोच। यस। उसमें हम पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, बिकम अ कोच, ग्रेट। सो वी विल है कीप ना? दैट, हैव नोटेड डाउन। So for somebody who is watching this episode, and if you are an absolute newcomer, or if you know somebody who's a newcomer, do not forget to watch our next episode. I promise you, what we'll do is we'll probably start the next episode with this question. I'm making a यस। note of it, and है ना? तो यस, पंकज जी, एब्सोल्युटली। आप भी एक हफ्ता वेट कीजिए. We'll definitely answer this question for you and यस your यस wife यस। too. यस तो यस, मैं दैट इसका वुड बी सही ग्रेट। नोट. हाँ. इनफैक्ट एक आओ. डायरेक्ट कनेक्ट भी हो रहा है हमारे टॉपिक से कि अब वो सीख गए कि हाँ मुझे कोच बनना है, हम्म. क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। सो अब नेक्स्ट हम्म. स्टेप वही है ना कि कैसे बने, अब ये बताओ, जिनको करेक्ट. बनना है तो। ग्रेट ग्रेट। करेक्ट. हाँ, एक क्वेश्चन हमने नोट किया था जो शायद रह गया है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर एब्सोल्यूट क्वालिटीज ऑफ अ गुड कोच? कि ये बैकएंड हो डिस्कस किया गया. ना हम लोग कि किया. क्वालिटी, हाँ कि क्वालिटीज में मैंने कि दो वो तीन केयर मैंने दो करना तीन चाहिए। मैंने दो तीन इंटेंजिबल क्वालिटीज लिखी हुई थी जो मुझे हम्म। लगता है कि एक बार मैं कवर अप कर लूं. सो व्हाट आर द इंटेंजिबल क्वालिटीज ऑफ अ गुड कोच? ठीक हम्म। है ना? So I'll say communication. Your communication has to be very clear and precise. You should you should learn how to talk to the camera. Like literally, हम्म। I can talk to the camera for hours as if you're sitting right in front of me. I'm talking only to you, and you're the only person who exists in my life right now. If हम्म। you can feel that connect right now, that's because I have gotten comfortable to talk to the camera to such an extent. So clear communication, getting comfortable creating content, talking to the camera, हम्म। storytelling. Storytelling is a very big concept of becoming a good coach because you'll talk in metaphors, you'll talk with the whole concept of how do you motivate people without really making them focus only on the motivation part of it. Your motivation has to make them stand up from where they are and take the next 2 3 steps. हम्म। You also have to be comfortable with tech because today coaching business is impossible to set up without a proper tech backend. We clearly spoke a lot about the backend, so you can watch that aspect of the episode all over again. हम्म। You also need a lot of confidence within, the confidence that you can and you want to make a difference in someone's life, because if you don't have the confidence, you will not be able to sell with conviction. And the last point is you really need to learn how to sell, because if you're not confident when you're not selling with conviction, you may have the best program in the world, you may get tons and tons of leads, but if you don't know how to sell, none of it is actually going to translate into revenues for your business. So yeah, communication, getting comfortable talking to the हम्म। camera, creating content, marketing, storytelling, uh, being comfortable with tech, confidence, and learning how to sell are some points that I had just written down. And these are points that just came to me at the top of my mind. ग्रेट। ऑलराइट। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था बिफोर वी वाइंड दिस अप, कि हाँ. इज देयर अ नीड फॉर सो मेनी कोचेस? हम्म. अगर सभी कोचेस बन जाए तो स्टूडेंट्स कौन बनेगा? ये वैसे हम्म. तुम लोग कवर किए फर्स्ट एपिसोड में भी, बट हाँ. लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट दिस वंस अगेन, सो आई वुड लाइक हाँ. यू टू गो थ्रू दैट, अगर आप। Okay, so the idea is first of all, you will never have enough coaches because हर कोच का अपना एक लैंग्वेज होता है, एक टोनालिटी होता है, एक बात हम्म। करने का तरीका होता है. So one person will at the most connect with one or two coaches in their own industry. So there is a very big market. And as we discussed, can everybody become a coach? Yes. Should everybody हम्म। become a coach? No. हम्म। So there's always going to be a demand supply mismatch. So यस। become a coach. If you've gone through this entire episode, please make notes, share your notes on social media, click the story of your notes and share it on Instagram, so that tag us on that story so that we can understand what is working for you, what is not working for you. In the comments, ask us your questions so that we can answer your questions better.
But Yes. when we talk about uh, the whole concept of is there a need of so many coaches, as I said in the last episode, we've not even scratched the surface yet. Hmm. मुझे लगता है अभी तक हम स्टार्टिंग लाइन पे ही हैं, विच इज द रीजन वाई. एक सिंपल चीज समझ लीजिए, लेट्स टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग. Hmm. फिल्म मेकिंग 100 साल से इंडस्ट्री बनी हुई है. आप फिल्म मेकिंग के ऊपर अगर देखोगे तो आपको पता नहीं कितने चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे. आप अगर कोई भी बिजनेस के लिए, शॉपिफाई बिजनेस, ई कॉमर्स Hmm. बिजनेस के लिए ढूंढोगे, यू विल फाइंड सो मेनी यूट्यूब चैनल्स विच आर टॉकिंग ओनली अबाउट हाउ टू रन एन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस. Yes, You talk absolutely. about coaching, you will not find a single quality podcast. You will not find enough content, which is why the two of us decided to come together to start this podcast and start creating the Coach I Need Help community. ठीक है ना? So एक तो सबसे पहली बात, there aren't enough coaches. We need hundreds and thousands of coaches more. इतनी बात का तो मुझे 100% गारंटी है. इसमें दूसरी मनीष, बात, ठीक हाँ है। हाँ, बताइए बताइए. हाँ, इसमें मुझे एक क्वेश्चन आया है कि जैसे मैं एक सोच रहा था कि ये भी तो हो सकता है कि अगर बहुत सारे चैनल नहीं है कोचिंग इंडस्ट्री का, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो आप दिए कि चलो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट ये भी तो हो सकता है हम्म. इसका डिमांड ही नहीं होने वाला है, इसलिए कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है इस पे। 5 साल में पता चल जाएगा हम राइट से या डिमांड सप्लाई का मिसमैच राइट था. यस। जब हमारे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, जब हम अच्छा खासा वर्ल्ड टूर करते रहेंगे, लोगों के साथ बात करते रहेंगे, लोगों को कोचिंग इंडस्ट्री में आने एक सिंपल चीज समझिए, ये सेम क्वेश्चन है ना, हो सकता है 10 साल पहले कोई यूट्यूब के बारे में बात कर रहा था, हम्म। या किसी को यूट्यूब में करियर बनाना चाहिए. आज अगर किसी को भी पूछोगे तो अगर बोल देगा कि वो यूट्यूबर है, तो सिर्फ एक ही सवाल उसको पूछेगा, अच्छा तेरे सब्सक्राइबर्स क्या और तू कौन से कंटेंट का वीडियोस बनाता है. ठीक है यस। ना? लेकिन 10 साल पहले, अरे क्यों, तूने पढ़ाई क्यों की, व्हाई डिड यू गेट अ डिग्री, व्हाट इज अ यूट्यूबर, कैसे यस। करेगा, करियर कैसे बनेगा. तो ये वैसी चीज है, 5-10 साल में हम दोनों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. यस। अगर आप और मैं एज अ पैनल एक्सपर्ट कहीं जा रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये चीज का रिक्वायरमेंट 10 साल पहले हम दोनों को समझ में आ गया था. यस, और एब्सोल्युटली। अगर और अगर 10 साल बाद अगर हम दोनों कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट को कोई देखेगा नहीं और हमको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, कोचिंग बिजनेस का इतना डिमांड नहीं था. बिल्कुल, या तो उनको समझ में आ गया या तो हमें समझ में आएगा। I have put my entire money on coaching as an industry. So I know this industry is only going to keep growing, expanding, and booming. ठीक है ना? So यस। first, I think there is a need of hundreds and thousands of coaches more. Right now, there's no second thoughts about it. Second thing, now let's look at the whole concept of coaches training other coaches. ठीक है ना? सिर्फ एक इसको एज अ फील्ड ले लो. इसमें एक कोच है जो आपको सिर्फ वेबिनार्स करना सिखा रहा है, एक कोच है जो आपको मार्केटिंग सिखा रहा है, एक कोच है जो आपको फुल फनल मार्केटिंग सिखा रहा है, एक कोच है जो आपको सिर्फ ईमेल मार्केटिंग सिखा रहा है, एक कोच है जो आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखा रहा है. सारे के सारे टारगेट मार्केट एक ही है, हाउ टू बिल्ड योर कोचिंग बिजनेस. लेकिन हर एक का अप्रोच अलग है. और 50-60 कोच हो सकते हैं इसी फील्ड में सिर्फ। एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. तो एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे कोचेस हो सकते हैं, क्योंकि once you get into the business, you will realize that every 6 months you will face a different problem, and you don't need a different coach for every problem. But if that problem becomes so difficult that you will not think twice before spending some money to go to a new coach where they'll teach you only two new extra things, but those two new extra things will change the trajectory of your business. यस। So this is the second reason why there will never be enough coaches. अब मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, व्हेन इट कम्स टू पेचेक टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट्स, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके लिए तो मतलब मुझे नहीं लगता मनी से ज्यादा किसी भी नीश में इतने कोचेस हैं. बट कोई यस। फर्क नहीं पड़ता है. द मोमेंट मैं अपने खुद के वेबिनार्स में बोलता हूँ, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक डबल योर मनी इन 21 days, इफ यू वांट टू टेक रिस्क विथ योर मनी एंड you want to get into directly into trading, please don't come to me, because then you are not my target audience. I want to talk to people who are really serious about their money. I want to talk to people who want to build a very strong relationship with their money first. I want to talk to people who are not just trying to get financially free, who are going to make wealth for generations to come in their families, 5 years, 10 years, 15 years down the line. But you'll have to start somewhere, right? यस। Because wealth cannot be made in a day. You can't create wealth in 1 year by just trading all your money in the stock market. You'll definitely lose your money sooner than later because your mindset is not in place.
वेल्थ गेट्स क्रिएटेड फ्रॉम द माइंडसेट। तो लोगों का अप्रोच अलग है। हम्म। हो सकता है कोई दूसरा कोच हो जो गारंटी देता हो कि वो 1 साल में तुमको वेल्थ बना के दे देगा। ऐसा अगर किसी का टेस्टिमोनियल है तो मुझे दिखा दो, मेरे को तो इसके हम्म। सारे एंटी टेस्टिमोनियल्स ही पता है। सो the approach of a coach, the attitude of a coach, the problem that they are solving, the transformation that they are giving you. There are so many different angles to the coaching industry कि इसमें आप कभी भी सैचुरेशन आने के लिए तो अभी मतलब मुझे लगता है डेकेड्स दूर है सैचुरेशन। यस। सो आई डोंट थिंक देयर एवर बी इनफ कोचेस। आपको क्या लगता है पंकज? मुझे आपको वो बात पसंद आया कि 5 साल बाद देख लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा खुद ब खुद। या तो हम लोग सही होंगे या फिर कोई और सही होगा। दोनों केस में बेनिफिट हमारा ही है, क्योंकि ये हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, नॉलेज। इनफैक्ट कल मैं आपके स्पेशल जो मेंटर है सिद्धार्थ, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। सो वो बता रहे थे कि द फास्टेस्ट वे टू लर्न इज बाय टीचिंग अदर्स, क्योंकि और ये ऑफ कोर्स। सब सब जानते हैं, ये प्रोवर्ब सभी जानते हैं। तो जब हम लोग अभी पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग को थोड़ा प्रिपेयर होकर आना पड़ता है कि मैं जनरली नहीं प्रिपेयर होता हूँ, बट जब पढ़ाना होता है तो और भी क्वेश्चंस का आंसर मिलते जाता है, माइंड एक्सपैंड होते जाता है, नॉलेज एक्सपैंड हो रहा है। सो मेरे लिए तो ये बेनिफिशियल ही है कि मैं अपने एजेंसी क्लाइंट्स को और ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा, उनका और ज़्यादा अच्छे से सर्व कर पाऊंगा। कोचिंग कर रहा हूँ तो उनको और ज़्यादा अच्छे से सर्व कर पाऊंगा। और इससे करेक्ट। मेरी ब्रांड भी बन रही है, और जो हम लोग डिस्कस किए थे ईमेल को नर्चर करना है, ईमेल नर्चरिंग भी होगा। तो मेरे लिए तो ये प्योर बेनिफिट ही है, अभी जितने टाइम तक भी हम लोग कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल। तो मेरे लिए तो ये प्योर हर तरह से बेनिफिट है। बस मुझे इतना मिल रहा है, सो आई एम हैप्पी। मुझे ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या सोच रहे नहीं सोच रहे। और ऑफ कोर्स मेरे मेरे तरफ से तो, सिंस आई एम इनटू दिस बिजनेस, तो मेरा भी ऑफ कोर्स यही मानना है कि कोचिंग बिजनेस तो ग्रो करेगा ही, तभी तो मैं इसको फुल फ्लेजेड एज अ करियर बना रहा हूँ अपना जॉब को ऑफ छोड़कर। कोर्स। ऑफ कोर्स। यस। सो हर तरह से कोचिंग बिजनेस ग्रो करेगा। जिनको मन है सोचो मत, आप लोग आ जाओ, ट्राई करो अपने लिए कि आपको कैसा ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। एंड बैकएंड वगैरह का जो हम लोग बात किए थे उसमें आपको डरने का जरूरत नहीं है। हाँ। धीरे धीरे करके एक एक करके सेट हो जाता है सब। करेक्ट। आपको बस लर्न करना है प्रॉपर मेंटर से। एक एक वन स्टेप एट अ टाइम करो आप। 10 दिन की जगह आप 2 महीना लगा लो, ज्यादा टाइम लगा हाँ। लो। कोई करेक्ट। हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको पूरा लाइफ ही इसको करियर बनाना है ना, तो धीरे धीरे करके आप सेटअप कर लो, इसमें क्या हड़बड़ी है। Perfect. ये है। And सो please, if you're यस। watching till this point, I'm sure you have come up with at least 4, 5, 6, 7 questions. यस। Please do not forget to ask us your questions in the comments, please, because only when you ask us your questions do we understand what areas are we not covering or what areas do we need to expand on further. So यस। please do यस। that. यस। सो मनीष जी, और कुछ रह गया हमें डिस्कस करना, या फिर आप चाहोगे इसको कंक्लूड करना? No, I think we should bring this episode to a close. We've discussed a lot. This may हम्म। seem like a very easy flowing episode, but I'm also trying to think about it from a person who's not from this industry or who's new into this industry. अगर मैं पर्सनली ये एपिसोड एज अ लर्नर सीख रहा होता तो मैं तो कम से कम 4 या 5 पेज के नोट्स बना चुका होता अब तक। अच्छा। So we've given enough information for people to think about. So please let us know what are your thoughts and show us your notes in the comments and on Instagram stories. So I think I'll rather close by talking about something that I'd hinted earlier. हम्म। What are we going to cover in the next episode? ऑल राइट। Yeah, the next episode we are going to talk about how to become a coach. So we are talking about how should a newcomer, absolute newcomer, become a coach. What should be a step-by-step, risk-free thought process or a risk-free mechanism, which I just came up with when Pankaj asked me this question: what if his wife wants to हम्म। dabble into the world of coaching without really establishing a business? I came up with a हम्म। brilliant idea just in my head at that point of time, which is why I said let's cover that in the next episode. Can anybody become a coach? Steps to become a coach, marketing requirements to become a coach, selling requirements, organic or paid marketing. We are going to cover all of these subjects and a lot more. This is the direction that we are going to. And then I've realized that once we start recording, we come up with some new ideas and we also Yes. digress, but that digression is also way more valuable than the agenda that we'd already decided for the episode. So I don't know what will happen in the next episode, but I can guarantee you it's going to be amazing. So Yes. thank you so much for giving us your time. Please do not forget to like, subscribe to the channel, like this video, share it with another coach because just sharing this video with one coach, you don't know how much help are you going to give to that coach. And Yes. subscribe to this channel so that you are always updated on the next episodes and all the other updates that we give to the community.
Thank you so much for giving us your time. We'll now see you in the next episode. Thank you so Yes. much. Take care. See you.